Hello everyone. So this is Vivek and I am here with UPSC Prelims 2026 Strategy and Guidance. Since this is my first video, I'll tell a bit about myself. My name is Vivek and I have given 4 prelims in total. I have cleared 3 prelims consecutively in 2022, 2023 and 2024. So what this video is about. So I've been mentoring at a coaching institute for around 2.5 years, and I've seen this buzz around prelims that we need to prepare prelims from December. How do we prepare it? How to prepare it? What should be the strategy? Where do we get the right guidance and all those things? So I thought that maybe it's the right time to tell you guys that how should we prepare prelims, what should be the resources and all other things. So what I'll do in this video is that first I'll tell you the common things that are required, means what should be the main things, then I'll tell you subject wise what all we need to do. Okay. And in another videos what I'll do is that I'll break subject wise everything for the prelims preparation specifically. I'll make those videos short. Okay. So let's start with the यूपीएससी prelims for 2026. हो जाएगा अगर करोगे तो ठीक से, है ना? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू हैव अ प्लान अलॉन्ग विद यू. ऐसा नहीं कि अभी मुझे फॉलो कर लिया देन यू स्टार्टेड फॉलोइंग समवन एल्स इन द मंथ ऑफ मे और अप्रैल. ऐसे नहीं चलेगा. ओके, यू नीड टू हैव योर ओन प्लान. देयर इज समथिंग स्पेशल इन द एंड ऑल्सो, आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल देयर. ठीक है. सो सबसे फर्स्ट थिंग, static is more important than current affairs. Okay, this is the most important thing in the whole prelims. Okay, if you are preparing for prelim, you should know your static will help you clear this examination, your current affairs will not. Okay, one more thing, that if a current affairs question is there, okay, so you will be able to solve current affairs question 50% of the time using the static knowledge, but you won't be able to solve any of the static question using only your current affairs knowledge. Okay, so pehle what you have to do is that you have to solidify your static, solidify your basics, then only you need to prepare or revise for the current affairs part. ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, राइट. तो देखो, करंट अफेयर्स इफ यू विल सी, इट इज इन टू टाइप्स मेनली. फर्स्ट इज द कंटेम्प्रेरी पार्ट, राइट. कंटेम्प्रेरी अफेयर्स विच यू कैन से, उसमें क्या है कि दे आर आस्किंग अबाउट 1 or 2 year old न्यूज़, 1 or 2 year old क्वेश्चन. सेकेंड इज करंट अफेयर्स डिराइव्ड स्टैटिक क्वेश्चंस, राइट. करंट अफेयर्स डिराइव्ड स्टैटिक. ठीक है. सो यू विल सी दैट देर आर मेनी क्वेश्चंस इन पॉलिटी और ज्योग्राफी स्पेशली, that they'll pick a topic from the current affair, then they will ask a static question about that topic from these subjects, you know. So we will do those things also. Third is, if you will see, priority, if you will talk about, so priority of subjects basically. So my pattern of giving priority to the subject, it has always been from polity or from static to current affairs subject, right. So initially it should be polity, then it should be economy, then geography we can take. Okay, then we can take environment, history can come after that, you know, and then science and tech and other IR वगैरह वाला portion if there are any. ठीक है. So that should be the priority. If you will see that in polity there are around 15 to 20 questions. Polity or economy में they are asking around 50 to 20 question each from each subject every year. Okay, in geography if you will see around 8 to 10 questions are coming. Since the IFS portion is also included in the prelims itself, so in environment they are asking around 50 to 20 question. Same goes with history, they will ask you about for 12 to 15 questions and like that only. So you need to focus on these areas, right. इन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लोगे तो नहीं भी बनता है ना साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, प्लेसेस न्यूज़ वाला पोर्शन, इवन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली क्लियर द एग्जामिनेशन. ठीक है. फोर्थ आता है पी वाई क्यूज़, अगर हम बात करें तो, राइट, कि पी वाई क्यूज़ कैसे करना है, कहाँ से करना है. तो देखो, पहले आई वुड से डोंट गो विथ 45 ईयर्स पी वाई क्यूज़ डायरेक्टली, वो डिफ़िकल्ट है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम वालों के लिए भी डिफ़िकल्ट है इफ़ यू हैव नॉट डन इट प्रीवियसली अच्छे से. व्हाट आई विल से, गो टू फर्स्ट 15 ईयर्स. पहले पहले 15 साल ही कर लेते हैं, फिर टाइम बचता है तो वी कैन गो बैक टू 20 ईयर्स और 10 मोर ईयर्स. 2000 से भी कर सकते हैं, पहले 2011 से कर लो.
2011 से 2025 की तो कर लो पहले, फिर बाद में देखेंगे बाकी और, ठीक है। आई मेक सेपरेट वीडियोज़ ऑन PYQs ऑल्सो। एक सेशन स्टार्ट करेंगे अपन जिसमें आई बी देयर सॉल्विंग PYQs अलॉन्ग विद यू। लाइव भी कर सकते हैं अपन, देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो PYQs में भी कैसे करना है, एक तो क्वेश्चन आंसर नॉर्मल कि भाई हमको क्वेश्चन आया, आंसर हमको पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू विल सी कि UPSC की जो आंसर की होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है ना, तो यू विल हैव टू गेट टू नो द आंसर कि भाई हाँ इसका आंसर उन्होंने ये दिया था, ठीक है। सेकंड इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग वाला पार्ट। अब रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करना है कि भाई ऑप्शन रीडिंग करनी है कि जो ऑप्शंस दिए हैं, जैसे मान लो ब्लैक होल हो गया, वॉर्म होल हो गया, साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आता है जैसे, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई अगर ब्लैक होल पे क्वेश्चन आया तो इफ वॉर्म होल इज़ देयर इन द ऑप्शंस, दे कैन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द वॉर्म होल इन द अपकमिंग ईयर्स, ठीक है। थर्ड इज़ रिपीटेड थीम्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर, मेनली फॉर योर स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए भी, बट स्टैटिक में बहुत काम आएगी ये चीज़ आपको। हिस्ट्री में देखो तो हिस्ट्री में क्या है, वो विजयनगर से दे आर आस्किंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, राइट, ओके। अगर और देखें तो जैनिज्म, देर इज़ अ रिपीटेड थीम, ओके। जैनिज्म से दे विल आस्क क्वेश्चन फॉर श्योर एवरी ईयर, देर इज़ नो गोइंग बैक इन दैट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, राइट। इसमें you need to have that mindset, you need to have that aptitude for prelims preparation. We will talk about this also कि how can we generate it, PYQ से ही generate होगा, देखो वो we will solve this much PYQs ना, इतने तरीक़ों से solve करेंगे हम particular question को, not all questions obviously, that we will generate that aptitude by ourselves, ठीक है। Okay, so let's move to the subject wide strategy, okay. So we'll start with priority basis only. First we discuss that we will cover polity, right. For polity, we'll start with NCRTs. So you have to read the 11th NCRT, that is Constitution at Work. 12th NCRT, it's optional. If you want to read, you can. If you don't want to, you can skip it. There is no issue in that. The most important is the Lakshmikant, okay. You have to read Lakshmikant. There is no substitute for it. अगर कोई कहता है कि अरे लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, इसके नोट्स पढ़ लो, लक्ष्मीकांत से ही बना रखे हैं, ऑल दोज थिंग्स, please ignore those advices. Read Lakshmikant once, twice, thrice. Don't make notes out of it. Just underline the headings or whatever things you think are important in the Lakshmikant. Bookmark those things in the book itself, okay. Read from the book only, don't make any notes out of it or don't do anything like that. Read from the book itself. Try to focus more on the governance portions in this particular book, क्योंकि we try to ignore this governance portion there, those election things, party naming, all those criteria are there in these particular sections. So what we do is that we ignore those things and questions are being asked from that particular portion in recent years, if you will see the trend. Current affair portion you can cover basically, that's what I told you, the derived news that we talked about, the derived current affairs basic questions, that one, plus the current affairs of governance section. You have to read that particular portion, most importantly for polity section. And then comes the PYQ section, okay. So we have to do the PYQs, we have to take out the themes from this particular section. Like there is a theme which is constitutionalism, okay. So you will see that out of the last 15 years, around 10 to 12 questions has been asked around this particular theme only, okay. If you will see that they have asked the same question repetitively in one way or another way. Then comes the economy, okay. So for economy, what you have to do, you have to pick any reference book whatever you like. You can look out for Vivek Singh, you can go for Sanjeev Verma also, or whatever book you think is good enough, you can just refer that book. So what we have to do in that you have to grasp the concept basically, right. So in prelims what happens, questions are being asked from the conceptual part, not from the theory part mainly. So economy में भी क्या होगा, that they'll ask 8 to 10 questions from the basics. Basics means the topics which are there and which you read in the basic syllabus, and around 5 to 8 questions will be from the current affairs. So ये current affairs वाला जो portion है, this will depend on how the paper is being set. It
कैन बी ईजी, इट कैन बी डिफिकल्ट, बट दिस बेसिक थिंग इट शुड बी डन बाय यू. मतलब वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एंड यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस टू बी इन द प्रीलिम्स गेम इटसेल्फ. करंट अफेयर्स के लिए यू कैन आइदर रेफर उड़ान और यू कैन refer to PT 365 also if you want to. Okay, current affairs should be done in a good manner. In economy, I'll make a separate video for economy, so there I'll tell you ki how to read current affairs for economy portion. Then comes the PYQs portion in this also. Okay, तो PYQs के लिए क्या करना है, वही themes identify करो. Like there is a theme called inflation, there is a theme called GDP, GNP and all those things. The different terms are there. Sorry. Okay, GNP, like, right? And there are other current affairs questions which you can see that there some terms are being asked from the economy itself. So if means वो current affairs ही पूछ रहे हैं, so you have to just go through the current affairs of economy कि अगर कोई टर्म भाई हमको आ गया न्यूज़ में है एंड इफ़ वी हैव गॉन थ्रू इट तो बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो वी हैव टू स्किप इट इन द एग्जामिनेशन, राइट. एनसीईआरटी के लिए यू हैव टू रीड द बोथ द एनसीईआरटीज 11th एंड 12th की. यू हैव टू स्किप द मैथमेटिकल पोर्शन, हमको बस थ्योरी पढ़ना है. ओके, वट एवर द टर्म्स आर बीइंग गिवन देयर वो सब हमें पढ़ना है. मेनली थ्योरी वाला पोर्शन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला पोर्शन, कोई नया टर्म अगर दिया है तो यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी. देन कम्स ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर इट. लाइक लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही है. 6th 7th 8th की भी पढ़ना है आपको, 9th to 12th की भी पढ़ना है. ओके, 7th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बेसिक बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन नहीं होते हैं ज्योग्राफी वाले वो पूछते हैं, देखना आप एक बार. हम पीवाईक्यूज़ में भी एनालाइज करेंगे कि कैसे वो एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछ ले रहे हैं अलग अलग तरीके से, राइट. एंड 9th to 12th वाली यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स इन दोज बुक्स. ओके, देन कम्स जीसी लियोंग, काफ़ी पॉपुलर बुक है. सो इन जीसी लियोंग व्हाट यू हैव टू डू कि लैंडफॉर्म वाला एक चैप्टर है, दैट इज़ गुड इन दैट पर्टिकुलर बुक. बाकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस बुक का मेरे ख्याल से. तो एक लैंडफॉर्म वाला चैप्टर बट हाँ काफ़ी बढ़िया दे रखा है, तो यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम दैट बुक. उसके अलावा बाकी ठीक है. कोई रेफरेंस बुक इफ़ यू थिंक यू कैन रेफर टू दैट बुक, अदरवाइज एनसीईआरटी और इससे हो जाएगा. आप अपने नोट्स वगैरह रेफ़र कर सकते हो अगर आपने बना रखे हैं कहीं से तो, ठीक है. उसके बाद इसमें भी आते हैं मैपिंग. तो मैपिंग के लिए क्या करना है, अब देखो मैपिंग में बहुत सारे बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी मैपिंग. ओके, सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इन द मैपिंग, एक वन थिंग इज़ रिवर्स, देन माउंटेन्स, देन passes. Okay, these three are most important from the Indian perspective for particularly geography. Okay, and then PYQs. PYQs में you will see there are multiple themes which are being repeated. So वही we will identify the themes, we will reverse engineer them and we will try to prepare accordingly. Okay, इसके लिए भी मैं वीडियो बना लूँगा अलग से सेपरेट. ओके, नेक्स्ट कम्स इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट करते हैं. तो इन्वायरमेंट के लिए व्हाट यू हैव टू डू, वही नोट्स पढ़ लो या रेफरेंस बुक पढ़ लो. रेफरेंस बुक में यू कैन रेफर टू आइदर पीएमएफ या शंकर वाली बुक भी काफ़ी ठीक है. बेसिकली यू हैव टू गेट योर बेसिक्स क्लियर. ओके, कहीं से भी करो फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा. एनसीईआरटी एक पढ़नी है आई गेस 12th की बायोलॉजी वाली जो एनसीईआरटी है उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं. ओके, बायो की तो वो पढ़ लेना वहाँ से. देन पीवाईक्यूज इसमें भी. अब देखो इन्वायरमेंट में भी सेम ऐसा ही है. इफ़ यू विल सी कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं तो अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल. उसमें से 8-10 स्टैटिक के होंगे, 8-10 क्वेश्चंस जो होंगे वो करंट अफेयर्स होंगे, प्रॉपर करंट अफेयर जो हवा भी नहीं लगेगी कभी क्या बन रहा है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू गेट दिस करेक्ट. ये नंबर वी हैव टू मेक दिस करेक्ट मैक्सिममली. ओके, ये वाला जो पोर्शन है वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा करना ही करना है. there will be questions which you will not be able to attempt, so ठीक है, we will try to attempt through aptitude or either we will skip it. Okay, no issue in that. Then comes the science and tech part. तो साइंस एंड टेक के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो साइंस एंड टेक के बेसिक्स क्लियर कर लो हर टॉपिक के. ओके, get it done from anywhere wherever you want to. I'll also upload my own notes of science and tech basics. ठीक है, like स्पेस इज़ अ टॉपिक. ओके, बायो वाला एक टॉपिक है, उसके बाद और भी है ना, बायोटेक एक टॉपिक है अलग से, राइट.
सो गेट योर बेसिक्स डन फ्रॉम एनीवेयर वेर एवर यू फील कि हाँ ये ठीक है। आई विल टेल द रिसोर्सेज ऑल्सो इन सेपरेट वीडियो जो बनाऊंगा मैं, उसमें रिसोर्सेज भी बता दूंगा कहाँ से करना है ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक। देन कम्स द पी वाई क्यूज, सेम गोज पी वाई क्यूज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू हैव टू research on the options also. Like there was a question on black hole, okay, if the definition has been given and the black hole and wormhole has been given in the options itself. So if the correct answer is black hole, so you have to prepare wormhole definition also for the next year question. वो आएगा ही आएगा, पूछेंगे ही पूछेंगे वो आगे चल के कैसे ना कैसे करके। तो करंट अफेयर्स के लिए वही या तो उड़ान कर लो या PD365 कर लो, वट एवर सूट्स यू, ठीक है। बाकी इसके हम कुछ टॉपिक्स करेंगे जब हम PYQs करेंगे, तो आई टेल यू करंट अफेयर्स के बारे में भी कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, राइट। मेनली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू गेट व्हाट वी कैन से कि यू हैव टू गेट फेमिलियर विद द हेडिंग्स एंड उसमें क्या चल रहा है। बहुत डीप में नहीं घुसना है किसी भी चीज़ के, सब कुछ नहीं आना है हमको, हमको पता होना चाहिए बस, दैट्स इनफ। बाकी ऑप्शन से हम कर लेंगे चीज़ें, राइट। देन कम्स द हिस्ट्री पार्ट। तो देखो अब हिस्ट्री के लिए क्या करना है, एक तो बेसिक के लिए हर एक टॉपिक के बेसिक के लिए एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के लिए एक बेसिक बुक करना है आपको, ओके ठीक है। वो सतीश चंद्रा हो, आर एस शर्मा हो, जो भी हो। उसके बाद पी वाई क्यूज़, तो पी वाई क्यूज़ के लिए वो टाइल से इसमें भी थीम्स आइडेंटिफाई करो। थीम्स हो गए, टर्म्स हो गए, काफ़ी सारे टर्म्स पूछते हैं, एनसीईआरटी से पूछते हैं। तो एनसीईआरटी कौन सी करनी है इसमें अपने को, इसमें करनी है वही 6 से लेके 8 तक की, देन 11-12 की थीम्स वाली जो एनसीईआरटीज़ है वो करनी है, ठीक है। 3 एनसीईआरटीज़ है थीम की, वो करनी है आपको, राइट। तो पी वाई क्यूज़ के लिए थीम्स प्लस टर्म्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि यार वो विजयनगर से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं हर बार ना, जैसे मैंने बताया पहले। सो दे आर आस्किंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि भाई कृष्णदेवराया इज़ अ पर्टिकुलर थीम इन विजयनगर ऑल्सो, तो वो पूछेंगे ही, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। उसके बाद हिस्ट्री के लिए यू कैन ऑल्सो डू घटना चक्र, ओके। यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि अगर आप घटना चक्र तमीज़ से कर लेते हो तो आपको बहुत सही हो जाएगा वो। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन बच रहा है, तो उसके लिए अगर ना है इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली करंट अफेयर्स ही पूछ रहे हैं पूरा। तो एक तो प्लेसेस इन न्यूज़ कर लो, वर्ल्ड की जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज़ है, इसके लिए आई थिंक सबसे सही सोर्स क्या है, सबसे सही सोर्स है इसके लिए PW का वीकली वाला जो होता है, दैट इज़ रियली अ गुड सोर्स। उसका 1 साल 1.5 साल का कर लो, दैट्स इनफ, पूरा हो जाएगा उसमें कवर। उसके बाद ये लोकेशंस वाला हो गया। बाकी कुछ मैपिंग देख लो, कैसे देखोगे मैपिंग कि भाई जो प्लेसेस जो है न्यूज़ में रही है, जैसे मान लो COP, जैसे COP कहीं पे हुई है पर्टिकुलर है ना, वो प्लेस न्यूज़ में रही होगी, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो भाई, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है ना। ज्योग्राफी देख लो, थोड़ा पॉलिटी देख लो उस पर्टिकुलर कंट्री का, एरिया का क्या सीन है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब आती है बात करंट अफेयर्स की कि सर करंट अफेयर्स कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है। तो जो लोग मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं उनके लिए आई वुड से कि दैट इज़ अ गुड सोर्स, अगर आप उसी को रिवाइज कर सकते हो तो वो करो। या फिर जिन लोगों ने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है तो भाई वेट करो उड़ान का, है ना, उड़ान या PT365 का, हम वहाँ से कवर करेंगे ना। आई विल ट्राई टू कवर दीज अलॉन्ग विद यू। कोशिश करते हैं कि अपन खुद से वीडियो बनाएं, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, वहीं साथ में लाइव बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उड़ान या PT365 कुछ भी उठा के, ठीक है। उसके बाद आती है बात टेस्ट पे कि टेस्ट टोटल कितने दिन है, तो आई थिंक 50 से 60 टेस्ट मिनिमम इतने तो देने ही पड़ेंगे आपको। सम विल से कि 80 दे लो, 100 दे लो, बट फिजिबल जो है वो आई थिंक 50-60 फिजिबल है। विजन की उठा लो, आई गेस विजन का सबसे सही मटेरियल है टेस्ट देने के लिए। तो उनके जो 24 टेस्ट होते हैं ना शुरू के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ वाले, जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, वो दे लो रिवाइज करके। आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि टेस्ट पे कैसे देना है उसके लिए भी, क्योंकि कोई कभी दे ले रहा है टेस्ट, कोई बिना रिवाइज करके दे ले रहा है, डोंट डू ऑल दोज थिंग्स। आई टेल कि कैसे देना है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट कितने देने हैं, कहाँ से देने हैं, तो देखो अराउंड 11 टेस्ट और होते हैं विजन के फुल लेंथ वाले, तो पूरे मत दो, अपन 8 ले लेते हैं कि 8 विजन के FLT होंगे, राइट। उसके बाद और कौन देता है, तो इफ़ यू विल सी तो लगभग 3 तो और कराता है विजन ही, अनुभव वाले, है ना, अनुभव नहीं सॉरी, आई गेस अनुभव नहीं है वो, अभ्यास है, तो अभ्यास दे लेना 3। ये 5 होते हैं अनुभव वाले, तो 5 अनुभव के दे लेना। ये सब फ्री वाले बता रहा हूँ है ना मैं, कुछ भी पेड नहीं है यहाँ पे, ओके। 3 टेस्ट विल बी ओनली IS, PW ओनली IS के जो होते हैं वो दे लो, PW ओनली IS वाले 3 टेस्ट, 3 टेस्ट ही बाजीराम के होते हैं फ्री वाले, ठीक है, वो दे लो। कितने हो गए यार, ये यही बहुत सारे हो गए आई गेस, 22 टेस्ट तो यही हो गए, ठीक है, 24 ही हो गए, नंबर 50 के आसपास हो गया, ठीक है। और 2-4 कोचिंग के उठा लेना किसी के,
तो 50 से 55 टेस्ट तो आप दो ही दो। अगर वो नहीं दे रहे हो तो फिर समझ लो कि प्रीलिम्स आपका निकलने के चांस कम है। निकल सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, चांसेस कम हो जाएंगे ना उस टाइम पे फिर। ठीक है, चलो ये हो गया। सबकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग। आई ट्राई टू मेक दैट ऑल्सो। हाँ, एक आखिरी में जो अनाउंसमेंट था, स्पेशल अनाउंसमेंट जो मैं बोल रहा था, अनाउंसमेंट ये था कि 1-to-1 मेंटोरशिप विच इज़ फ्री एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आई हैव बिन डूइंग मेंटोरशिप फॉर द पास्ट 2.5 year एंड आई थिंक कि आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, एक गूगल फॉर्म की लिंक रहेगी, और गूगल फॉर्म सबमिट करने के बाद ही एक और लिंक रहेगी जिसमें आप शेड्यूल कर सकते हो अपने हिसाब से कि कब कॉल करना है ना। वीकेंड पे रखेंगे अपन मेनली, तो वीक डेज में भी देखते हैं कुछ अगर हो पाएगा तो वी विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। ठीक है, वहाँ पे आओ, आप डिस्कस करते हैं। आई विल गिव यू पर्सनलाइज प्लान। ठीक है, पर्सनलाइज प्लान, एंड आई विल ट्राई टू मेक योर प्रिपरेशन कॉम्प्रहेंसिव। प्रीलिम्स के लिए ही करेंगे अभी अपन, ये मेंस की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि जो 2026 वाले बच्चे हो वही पहले वही स्लॉट बुक करें। ओके, तो प्रीलिम्स 2026 ही अपना प्लान है। आई ट्राई टू मेक कंटिन्यूस वीडियोस ऑन पीवाईक्यूज ऑल्सो, तो वो भी करेंगे। बाकी अभी मेंटोरशिप के लिए यही है, फ्री रख रहे हैं अभी, जिसको आना है बस। हाँ, ये ध्यान रखना है, प्लीज़ सीरियस एस्पिरेंट्स ही आना, जिनको देना है 26 में वही आना। कोई जो सीरियस नहीं हो या फिर जो रेडी नहीं हो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, वो मत आना, क्योंकि आई गिव यू ए पर्सनलाइज प्लान अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट आउटपुट फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। ओके, सो दिस इज़ इट, एंड मिलते हैं। आप कीजिए, लेट मी नो हाउ द वीडियो हैज़ बीन। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट आई विल मेक वीडियोज़ ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। सो ओके, बाय, थैंक यू।